Okay, students, so let us start today's lecture. We are going to discuss about the speed of electromagnetic waves. We're going to do that derivation. Speed of electromagnetic waves, right? So वो जो expression है, C is equal to 1 by under root mu naught epsilon naught. So how it is derived, we will discuss that. Okay. So what we will do is, we will first consider, यहाँ पे we'll consider this axis, x-axis, y-axis and z-axis, right? So we have considered this x, y and z, and we will consider one rectangular loop here. ऐसा एक rectangular loop लेंगे, right? And we will apply Ampere's Maxwell's law. Okay, the fourth one, Ampere's Maxwell's law. So this is A, this is B, this is C, and this is D. Okay, electric field इस तरह से along y-axis, right? Electric field हमने y-axis along लिया, and magnetic field is along z-axis. So actually electric field is intercepting. Electric field is intercepting this. ये जो आप देख रहे हो, तो electric field जो है basically वो इसको cross कर रहा है इस तरह से. Electric field is intercepting this area. Okay, so what we are going to use here, we are going to use Ampere's Maxwell's law. All right. So we have this electromagnetic wave traveling along x direction, right? We have the electromagnetic wave traveling along the x direction. It is traveling along x direction, and the variation of electric field will be given as E is equal to E naught sine of kx minus omega t. You can put j cap because electric field vector is along y-axis, and magnetic field vector you can write as b naught sine kx minus omega t k cap, right? Okay. So now what is Ampere Maxwell's law? Ampere Maxwell's law क्या है? तो वो हमने डिस्कस किया था. जो एम्पियर का लॉ था उसको मॉडिफाई किया था, राइट? और यहाँ पे जो है ये हो जाएगा b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड. तो यहाँ पे जो करंट एनक्लोज्ड है तो दो ऑप्शन है, कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ कंडक्शन करंट तो है नहीं, तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो इसलिए अपना एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा b डॉट डी एल. तो ये जो लूप है ABCD, इस ABCD पे हम क्या करने वाले हैं, we are going to integrate the magnetic field over this loop ABCD. All right. So this will be equal to what, mu naught times the displacement current. और displacement current का वैल्यू कितना है? Displacement current का वैल्यू है mu naught into d phi mu naught into epsilon naught into, right? ये आपको याद होगा. तो जो displacement current है उसका वैल्यू है epsilon naught into d phi e by dt. ठीक है, तो ये जो है इस पे हम लोग अब वर्कआउट करेंगे. लेट अस डू दैट. तो आप लोग प्लीज यहां तक नोट डाउन कर लीजिए सब लोग. Okay, so now we'll have to solve the LHS and we'll have to solve the RHS, right? And we'll compare both of them and then we'll get the answer. Okay. Okay. So let us start. Okay. तो यहाँ पे LHS में क्या क्या है? LHS में है आपके पास is a line integral of b dot dl over ABCD. ठीक है. So we can divide this into four parts: A to B, b dot dl, then A to C, sorry, B to C, b dot dl, then C to D, b dot dl, and then D to A, b dot. ठीक है. तो ये आपने देखा कि इस तरह से ये अपना लूप है और इस लूप में ये A, ये B, ये C और ये D. ठीक है. तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? मैग्नेटिक फील्ड तो वो z एक्सिस के अलॉन्ग है इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, लेकिन dl वेक्टर कैसा है? तो यहाँ पे dl वेक्टर ऐसा है, ऐसा. यहाँ पे dl वेक्टर ऐसा है.
यहाँ पे ऐसा है और यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, इस तरह से। तो पहला जो टर्म है उसमें थीटा 0 है, दूसरे टर्म में आप देखोगे तो फील्ड और डीएल के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तीसरे केस में आप देखोगे तो 180 है, और चौथे केस में आप देखोगे तो फिर 90 है। तो ये सेकेंड और फोर्थ तो कैंसल आउट हो गया, ठीक है। और ये जो लेंथ है, ये लेंथ हमने L2 माना है, और ये जो लेंथ है ये हमने L1 माना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट x1, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है इसको हम x1 मान लेते हैं लास्ट टाइम के जैसे, इसको हम x2 मान लेते हैं, तो ये bx1 डॉट dl का इंटीग्रेशन हो जाएगा L2, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस bx2 और ये हो जाएगा L2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करने हैं, तब आपको LHS मिल जाएगा, राइट। LHS जो है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl, जो उसका वैल्यू है वो हम लोग को क्या मिल जाएगा, वो हम लोग को मिल जाएगा bx1 माइनस bx2, ये कॉमन ले लेंगे, इधर l हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना b नॉट L2, ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा बच्चों, अंदर बचेगा साइन ऑफ kx1 माइनस ओमेगा टी और माइनस साइन ऑफ kx2 माइनस ओमेगा टी, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया आपका LHS, ठीक है। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन करो सब लोग। तो RHS में क्या दिया था, ये तो LHS हो गया, इसको लिख के रखो। अब हम लोग बात करते हैं RHS के बारे में, ठीक है। तो RHS में क्या है, RHS में आपको निकालना है डी फाई, जो आपका म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी जो है, वो चीज हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके, चलो तो देखो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। तो वी आर टॉकिंग अबाउट RHS। तो RHS में क्या है, RHS में है RHS में आपको है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बी फाई ई बाई डी टी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे डी फाई ई, ठीक है, डी फाई ई निकालेंगे। तो स्टेप्स ऐसे होंगे, डी फाई ई निकालेंगे, उसको इंटीग्रेट करके फाई ई निकालेंगे, फिर उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, राइट। तो आप लोग ट्राई करिए एक बार सब लोग। Okay, so let us do the calculations here. So first we'll have to take an element, area element. तो हम लोग एक एरिया एलिमेंट लेंगे, ठीक है, we'll take an area element. तो यहाँ पे इस तरह से एक हमने एरिया एलिमेंट ले लिया, ठीक है, we have taken this area element. ओके, तो ये ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है ये हमने x ले लिया, और ये जो डिस्टेंस है ये लेंथ हमने dx ले लिया, ठीक है। ओके, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, E is like this. So what will be the flux through this element? What will be the elementary flux through this element? This will be E dot ds, right? All of us know that. So E का वैल्यू कितना है, E का वैल्यू है E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी, और एरिया का वैल्यू कितना है इसका, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ हो गया L2, ब्रेड्थ हो गया dx, ठीक है। तो ये आ गया, तो दिस इज डी फाई बाई डी टी। अब हमें क्या करना है, हमें इसको करना है इंटीग्रेट, ठीक है, क्योंकि वी वांट टू फाइंड आउट द टोटल फ्लक्स, यहाँ से यहाँ तक का जो है, हम लोग को यहाँ से यहाँ तक का टोटल फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स के लिए आप इंटीग्रेट करोगे इसको x1 से लेकर x2 तक, ओके, आपको क्या मिलेगा, तो E नॉट L2 ये आप बाहर ले लो, और आपके पास अंदर बच जाएगा साइन साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी, और ये dx, इसका इंटीग्रेशन x1 से लेकर x2, ठीक है। तो आपको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, और फिर आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको RHS का पूरा वैल्यू मिल जाएगा। फिर हम लोग RHS और LHS को इक्वेट करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे स्पीड क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड कितना है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो जो फ्लक्स है, फ्लक्स हो जाएगा E नॉट L2, साइन का इंटीग्रेशन हो जाता, क्या होता है साइन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस kx माइनस ओमेगा टी,
और जो इसका कोएफिशिएंट है x का वो नीचे आ जाएगा k, और अब आपको इसमें वैल्यू डालने हैं x1 से लेकर x2 तक, ठीक है। ओके, तो आप इसमें अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये हो जाएगा E0 L2/k, और माइनस साइन है तो माइनस आप बाहर ले लो, बाद में आप डालोगे, पहले x2 डालोगे फिर x1 डालोगे, तो पहले x2 फिर बाद में x1 आएगा, माइनस कॉमन ले लोगे तो फिर से x1 ऊपर और x1 पहले और x2 बाद में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos kx1 माइनस ओमेगा टी, मतलब मैंने माइनस को अंदर ले लिया, या ऐसा कहो कि मैंने माइनस का ऑपरेशन यहाँ पे कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस, फिर ये आएगा cos ऑफ kx2 माइनस ओमेगा, ठीक है, सबका यही आया। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, अब RHS का वैल्यू क्या था, RHS था म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई बाई डी टी, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना, यू विल हैव टू डिफरेंशिएट दिस। तो म्यू नॉट ई नॉट को आप ऐसे ही रखो और इसको डिफरेंशिएट करोगे, इस टर्म को डिफरेंशिएट करना है, इस टर्म को, इसको आपको डिफरेंशिएट करोगे आप, तो क्या मिलेगा आपको, तो जो ई नॉट है, L2 है, K है, वो तो मिलेगा ही, विद रेस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हो तो ओमेगा आएगा दोनों टर्म में, तो ओमेगा आप बाहर ले लो, और अंदर बचेगा कॉस का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, यस यस सर। तो वो हो जाएगा माइनस साइन ऑफ kx1 माइनस ओमेगा टी, और ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा साइन ऑफ kx2 माइनस ओमेगा टी। तो अब अगर हम लोग LHS और RHS को इक्वेट करेंगे तो दोनों साइड से ये जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा ना कैंसिल, बोलो स्टूडेंट्स। यस सर। यस सर। हाँ सर। तो क्या बचेगा हमारे पास, तो हमारे पास बच जाएगा बस LHS और RHS में हमारे पास क्या बचेगा देखते हैं। अच्छा बताओ LHS में क्या बच रहा है, बी नॉट B0 L2। into L2. हाँ B0 इंटू L2, और इधर क्या बचा, Sin म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई ई नॉट नॉट W/K। ओमेगा बाई के, के। ठीक है। तो L2 कैंसिल हो गया, हाँ सर। ठीक है। और हम लोगों ने फाइंड आउट किया था ई नॉट का वैल्यू, लास्ट में देखा था आपने रिलेशन बिटवीन ई नॉट इज B0 C, ऐसे नो, उसको यस आप सर। यहाँ डाल दो, और ओमेगा बाई के जो है दैट इज ऑल्सो C, तो वो भी आप चेंज कर दो, तो आपको मिल जाएगा B0 इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ई नॉट का वैल्यू हो जाएगा B0 C, और यहाँ से इसका वैल्यू C हो जाएगा, तो B0 कैंसिल हो जाएगा, और आपको मिल जाएगा C स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो वहां से आपको जो आंसर चाहिए वो मिल जाएगा, C इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट म्यू नॉट। समझ में आया सबको, yes sir. हाँ ओके सर। वेरी गुड, यस तो सर। यस, तो ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग सब।